Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 18th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. Guys, first of all, we are going to revise the previous day session with the help of MCQs. So I request you to answer the question before I provide you the correct answer. So just start with the first question. The question number 1 is, what is the name of the parliament of Israel? You know, अभी रिसेंट टाइम में इजराइल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और जब ऐसे कुछ इश्यूज न्यूज़ में होते हैं, लाइमलाइट में होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं और जो न्यूज़ होती है उनसे कोई लेना देना नहीं होता एग्जाम का। एग्जामिनर चाहता है कि जब वो न्यूज़ कहीं पर लाइमलाइट में है तो क्या आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए आप एफर्ट लगाते हैं कि नहीं। तो इजराइल जब इतना सारा न्यूज में है तो वी शुड हैव सम बेसिक फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इजराइल। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल? तो इजराइल की पार्लियामेंट का नेम क्या है? डोम, आयरन डोम, नेसेट या नेशनल असेंबली? सो गाइज द करेक्ट आंसर इज नेसेट। दिस इज द name of the parliament that belongs to Israel. Next question is, what is the name of the air defense system of Israel? You know, कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है इट इज वर्ल्ड फेमस और वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा फेमस है एंड इट इज नोन दैट द neighboring countries which have animosity with Israel, even they are not able to uh, attack on Israel with accuracy because the defense system, air defense system of Israel is so accurate and efficient that it can neglect, reject or fight the attacks by any foreign object that is particularly such kind of weapons like missile or drone attacks. So recently there were some attacks from the side of Iran, but the efficient system of Israel rejected and fight efficiently with the attacks from the Iranian forces. So the name of this air defense system is Iron Dome. You know, it's world famous air defense system. So the next question is, which one is the capital city of Jordan? Because recently some activities have been noticed from Jordan forces that it's also being participated in the recent regional conflicts in West Asia. So what is the capital city of Jordan? Guys, the correct answer is Amman. That is the capital city of Jordan. You know, Tehran is the capital city of Iran, so it's not a correct answer. Amman, this is a Novan city. And Golan, you know, Golan Heights, it's a region that belongs between Israel and Egypt. The question number 4, which is the organization in India to deal with the human organ transplantation? You know, in last session, we also discussed about the blackmailing and black marketing and smuggling of human organs in India. So this was in news. You know, there is an organization which is responsible to regulate, to control, and to look out every kind of activities which is associated with the transplantation of human organ. So option A, NATO, AIMS, PMO, or option D, none of the above. Guys, the correct answer is NATO. Can you tell me the full form of NATO in comment box? So try to answer this question. Now we are going to question number 5. Question number 5, it is the act of publishing. We are talking about something, and in the option you have to find out that about what we are talking here. So it is the act of publishing someone's personal confidential information on the internet, often with malicious intent. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो किसी की पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर शेयर कर दी जाती है, स्पेशली विद द मलिशियस intent. So here we are talking about which kind of activity. It is a doxing या cyber threat या blackmailing या e-blackmailing. Guys, the correct answer is doxing. In last session we also discussed about doxing. Question number 6.
Which institute या organization has designed, developed or designed novel hydrogel? अभी एक इंस्टीट्यूट ने नोबल हाइड्रोजेल को डेवलप किया है टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। वाटर से माइक्रोप्लास्टिक्स को रिमूव करने के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजिकली जो है नोबल एक हाइड्रोजेल को डेवलप किया गया है। और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है जिसने इसको डेवलप किया है? Guys, the correct answer is IISc Bangalore, Indian Institute of Science, that is situated in Bangalore. You know, hydrogel will be used to remove microplastics from water, and it's a special technology. It can create a revolution in the removal of microplastics from water. So the next question is, microplastics are tiny particles of synthetic polymers and plastics and their products that are less than. Now here you have to find out that what is the minimum size of the microplastic particles in millimeters. So the correct answer A, B, C, D. Which one is the correct answer? The correct answer is B. That is 5 millimeters. When there any particle, any product, if its size is less than 5 millimeter, then it is considered as micro. Here we are talking about the particles of plastics, so that's why here we are calling it as microplastics. So this is the correct answer. Now we are going to question number 8. The question number 8 is, here you have to fill in the blank, is known as the Silicon Valley of India. It is named Silicon Valley because its role in the information technology industry. So you have to find out that city which is known as the Silicon Valley of India. The correct answer is Bangalore. So इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है जो है बैंगलोर को. कैन यू फाइंड आउट दैट विच सिटी इन द वर्ल्ड की कौन सी सिटी है दैट इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड? So here you have to find out and write the answer in the comment box. So the next is current affairs for today. So now start with the first news. The center tweaks green credit program norms to focus on restoration of ecosystem. You know, if we talk about its background about this program, that is green credit program, ये एक प्रोग्राम हुआ करता था और इसको रिसेंट ईयर्स में ही इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू means compensate or motivate the people or individuals or the companies which are working for the ecosystem. So for example, there is a firm A, and if it's working to restore the ecosystem and through its activities it's planting various trees in any forest or degraded land, then its activities will be awarded through green credit. Okay, so if one tree is planted by an individual or organization, then one tree will get one green credit. So इनको एक क्रेडिट ऐसा मिल जाएगा. You know, जैसे आप कई बार जो है अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसके मीन्स रिटर्न में आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं और फिर बाद में आप उनको यूज कर सकते हैं. जैसे फ्लिपकार्ट में भी यूज हो जाते हैं, वो टोकन्स देता है, कॉइन्स देता है, तो वो बाद में यूज हो जाते हैं. इन द सेम मैनर ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसमें भी ग्रीन क्रेडिट दिए जाते हैं ट्री की प्लांटेशन के लिए. अभी रिसेंटली में ये न्यूज में क्यों आया? बिकॉज प्रोग्राम तो पहले ही लॉन्च हो चुका था. ये जो amid concerns that the green credit program GCP which encourages organization and individuals to invest in afforestation ये degraded forest lands, या फिर ये ग्रीन क्रेडिट्स उनको मिलने वाले हैं. ठीक है, इसमें गवर्नमेंट अब कुछ रिसेंट में न्यू रूल्स वगैरह लेकर के आई है. अभी इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो जब ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो उसके बाद देयर हैव बीन अराउंड 13 स्टेट्स व्हिच हैड प्रोवाइडेड और फंडेड around 387 land parcels which amount to 10,983 hectares of land. And here there are various organizations and the government of the concerned states are also trying to plant the trees in those areas. Earlier there was a definition that to restore the ecosystem we have to plant trees, and there was a definition that at least 1100 trees should be planted within
1 hectare of land. But later research and suggestions from the experts, there were findings that only planting the trees, only the trees, it's not going to it is not going to restore the ecosystem, because when we talk about the ecosystem, it doesn't mean completely the plantation of the trees. When we talk about the ecosystem, then it also includes plants, shrubs, herbs, grass, and other living animals, and bacteria, and other various kinds of small animals or mammals or such kind of various living organisms. So here the government of India is now emphasizing that the government of all the concerned states should focus that we should not only focus on the plantation of trees, but we have to focus that wherever only the trees cannot survive, or there can be some land parcels where only the trees cannot be uh, suited for that particular kind of climate or particular kind of land. So the government is now emphasizing that in place of trees, you can also plant some other kind of plantations, like आप वहाँ पर shrubs लगा सकते हैं, कुछ grass लगा सकते हैं, या अदर टाइप से भी आपको वहाँ के इकोसिस्टम को क्या करना है, रिस्टोर करना है. मीन्स अब आप ओनली प्लांटेशन ऑफ ट्रीज से आगे बढ़ करके सम अदर एक्टिविटीज को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे. अब जब ये जो कंपनीज होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, जब ऐसी एक्टिविटीज करेंगे तो गवर्नमेंट उनको उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कंसिडर करेगी. व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट मीन्स जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं वो अपनी अर्निंग करती हैं इवेंचुअली फ्रॉम द सोसाइटी, तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करें. सो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप बात करें आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जहां पर इसकी रिफाइनरी होती है, वहां के नेबरहुड के आसपास में जो विलेजेस होते हैं, वहां की रोड्स वगैरह को ये बना करके देती है, कुछ फ्री एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कराती है, वहां पे बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है आईओसी. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये था आपका ये वाला आर्टिकल जिसमें बात हुई है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की. सो नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई होप कि आप इस टॉपिक को थोड़ा गूगल भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल के क्वेश्चंस को आप टाइमली रिप्लाई कर पाए. सो नाउ another important news is from the Delhi High Court. Here, Delhi High Court have given its order and one important observation in a case that was associated with suicide in a relationship matter. So, क्या था? It can't blame partner for abating suicide if relationship fails. यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि देखो, ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है, इनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा, एज ए मीन्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनका ठीक बहुत अच्छे से रिलेशन चल रहा, बट लेटर ऑन वन पार्टनर डिसाइडेड टू मैरी टू अदर पर्सन. अब जो अदर पर्सन था उसने सुसाइड कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पर उस लड़के ने जब सुसाइड किया तो उसके फादर ने एफआईआर फाइल की और उसके जो फाइल की और उसके अगेंस्ट में केस किया कि मेरे बेटे की जो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जो उसकी गर्लफ्रेंड और उस गर्लफ्रेंड का अनोदर जो है बॉयफ्रेंड, कि वो दोनों मिलकर के शादी कर रहे थे और इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको छोड़ दिया. तो इसके लिए उन्होंने केस फाइल किया था. तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि देखो, अगर ऐसी सिचुएशंस में लव फेल हो जाता है, लव का फेल्योर कर जाता है, वो आगे तक नहीं चल पाता, तो इट्स मीन्स इसका सेंस आप ये नहीं निकाल सकते कि जो अदर पार्टनर है उसने उसको डेथ के लिए अवॉइड किया, उसकी सुसाइड के लिए अवॉइड किया. तो जो लोग सुसाइड करते हैं, ये भी कहना था हाई कोर्ट का, जो लोग सुसाइड करते हैं वो मेंटली भी वीक होते हैं. तो ऐसे किसी भी कैंडिडेट जो मेंटली वीक हैं और ऐसे रिलेशनशिप मैटर्स को अगर नहीं कैरी कर पा रहे हैं, उनको नहीं मीन्स सस्टेन कर पा रहे हैं, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पार्टनर पर ही क्या कर देंगे, केस कर देंगे कि साहब उन्होंने भी उनकी सुसाइड के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है. फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिए. उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिए आप देख सकते हैं कि सपोज करो कि यदि कोई लव में फेल्योर कर जाता है तो उसका पार्टनर, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम्स में फेल कर जाता है, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता है, तो स्टूडेंट भी सुसाइड कर लेगा क्योंकि उसका पुअर परफॉर्मेंस रहा एग्जामिनेशन में. अगर कोई एडवोकेट है, उसका क्लाइंट अगर वो सुसाइड कर लेता है बिकॉज उसके जो एडवोकेट थे उन्होंने केस को उसमें विक्ट्री नहीं दिला पाए, वो
उनको रिलीफ नहीं दिला पाए तो उनका क्लाइंट भी सुसाइड कर लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इस तरह से तो जब स्टूडेंट मरेंगे एग्जामिनेशन के फेलियर की वजह से तो वो पूरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होगा, टीचर, उनको भी मीन्स जो पनिशमेंट मिलना चाहिए। इधर अगर एडवोकेट्स हैं वो अपने क्लाइंट को विक्ट्री नहीं दिला पाएंगे, रिलीफ नहीं दिला पाएंगे, तो फिर वो एडवोकेट रिस्पॉन्सिबल होंगे उनकी सुसाइड के लिए। ठीक है, तो इस तरह के उन्होंने एग्जाम्पल दिए, बोला कि ये इस तरीके का ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर बाद में उनको जो है बेल वगैरह भी उनको दे दी गई। नेक्स्ट हमारे पास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा मैटर है इंडिया की हिस्ट्री में, बिकॉज ये कुछ नया ही हो रहा है। क्या है? PIL इन हाई कोर्ट सीक्स फैसिलिटीज फॉर चीफ मिनिस्टर इन जेल। अभी एक PIL को फाइल किया गया है और आप सब जानते होंगे कि CM इन जेल कौन है। तो इन्होंने ये कहा है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो जेल होती है उसके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं और उसके अंदर वहां पर भी जितने प्रिजनर्स होते हैं उन सब के लिए वही जेल का मैनुअल वर्क करता है और सबको वहां पर इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या है, क्योंकि CM साहब जो केजरीवाल साहब है वो इस समय कहाँ पर है? जेल में है। और वो जेल में है तो साथ ही साथ वो CM भी है, बिकॉज उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। तो PIL ये कहती है कि बिकॉज वो एक CM है तो उनके लिए हमको चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए उनको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वहां पर जो है फैसिलिटीज दी जाए उनको, उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में मीटिंग की जो है फैसिलिटीज दी जाए, उनके साथ में अदर जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके साथ में भी मीटिंग्स की जो है फैसिलिटीज दी जाए। तो ये है आपका एक नए टाइप का केस। बाकी देखते हैं कि इस पर कोर्ट क्या अपना जो है डिसीजन देता है। तो अभी इंडिया के हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार हो रहा है, हमें तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं आइडिया कि ऐसा पहले भी कभी हुआ हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, दैट इज एडिटोरियल आर्टिकल। आर्टिकल बात करता है पुअर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो की, और उसमें वो कहते हैं इट कैन नॉट बी सेट राइट विदाउट द बेटर सेंटर स्टेट टाइज। यहाँ पर इस आर्टिकल में द राइटर ट्राइज टू कन्वे दैट देयर इज ऑलरेडी पुअर डॉक्टर एंड पॉपुलेशन सर्वे सॉरी रेशियो। देखो कि सपोज करो एक डॉक्टर है तो उसको वो कितने पेशेंट को देख सकता है, सपोज करो 1000। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इंडिया में ये सब बहुत ज्यादा, अभी इंडिया में डॉक्टर्स और जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो बहुत ज्यादा मीन्स जो है बैड कंडीशन में है। अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लेते हैं मदुरई का। मदुरई के एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने कहा कि मदुरई में एक एम्स का डेवलपमेंट किया गया था। एम्स वह बना, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, उसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया, और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन की उसकी इतनी बदमाशी रही कि उन्होंने बिल्डिंग वगैरह जब तक रेडी नहीं हुई, हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एडमिशन भी ले लिए स्टूडेंट्स के। 150 स्टूडेंट्स के इन्होंने एडमिशन ले लिए एम्स में MBBS के लिए। बट इनके पास में कोई भी ऐसी स्पेशल जो फैसिलिटीज होती है डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए वो वहां पर नहीं थी। अब ये कहते हैं कि देखो हमने 2003 में ही एक प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय 2003 में कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और उन्होंने इस प्रोग्राम में देयर वाज एम्फसिस दैट वी शुड रिड्यूस दिस गैप बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर रेशो और द डॉक्टर और द पॉपुलेशन रेशो। उन्होंने काम किया। उसके बाद में हमने देखे कि 20 एम्स नए बनाए गए और उसमें से अभी 3 जो है वो अंडर डेवलपमेंट में, बाकी कुछ ऐसे हैं जो फंक्शनल हो चुके। बट इन सब में इतने सारे फाउंडेशन स्टोन्स रखे गए, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज वगैरह हैं उन वो सब अभी तक उनको नहीं मिल पाई है। तो अगेन फिर से वही मदुरई का एग्जांपल देते हैं कि मदुरई में इन्होंने बनाया, एडमिशन इन्होंने ले लिए, लेकिन मदुरई से बाहर उन स्टूडेंट्स को किसी एक लोकल डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में वहां पर उनको ट्रेनिंग कराई जा रही है, उनके MBBS का कोर्स कराया जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अब उन बच्चों का जो MBBS के लिए उन्होंने एडमिशन लिया, उन्होंने जो प्रोटेस्ट वगैरह किया कि देखो हमने एम्स में एडमिशन लिया था, देयर वर आवर हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एम्स, बिकॉज आपको पता होगा कि इंडिया में एम्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट जलवा है। तो इनको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिली। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि इन बच्चों का जो 150 जो पर्सन थे जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, MBBS बन रहे हैं, इनका जो ये जो स्टडी वाला जो टाइम है ये तो बहुत ज्यादा ही बैड रहा, और ये इनको लाइफ टाइम इनके जो एजुकेशनल सॉरी इनका जो मेडिसिन में जो करियर होगा उसको ये अफेक्ट करता रहेगा, बिकॉज इनकी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर फैकल्टीज, स्टडी मटेरियल, वो जो मशीन्स होती हैं वो सब इनको अवेलेबल नहीं हो पाई। तो अब इन जो डॉक्टर्स की जो क्वालिटी होगी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ठीक है, देयर कैन बी वेरियस एफर्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, बट इफ at the national level all the governments want to reduce this doctor and population ratio, then there should be comprehensive efforts in coordination with both state governments and the central government. तो अब हम इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमको इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको क्लोज कोऑपरेशन में वर्क करना होगा, ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सो नाउ दिस वाज द आर्टिकल. नाउ वी आर गोइंग टू अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज. अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस जो है फ्रेम होते हैं. ये कौन है? आप जानते होंगे, साक्षी. आपने इनका नाम सुना होगा. शी इज अ फेमस रेसलर ऑफ इंडिया. अभी इनका नाम आया है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में. आपको पता होगा, यू नो, देयर इज अ पब्लिकेशन ऑफ टाइम्स मैगजीन which provides a list of top 100 individuals which are influential at the global level, और उसमें एक 100 पीपल की जो लिस्ट निकालती है टाइम्स मैगजीन. तो जो साक्षी मलिक हैं उनका लिस्ट आया है टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में जो है. ठीक है, टाइम्स मैगजीन की यहाँ पे बात हो रही है. और आपको एक बात और पता करनी चाहिए यहाँ से कि साक्षी, शी इज इंडियाज ओनली विमेन ओलंपिक मेडलिस्ट. हमारे अभी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था उसमें से ओनली विमेन है जिसने रेसलिंग में जो है मेडल जो है जीता है. ठीक है, तो ऑनर फॉर हर रेलेंटलेस राइट अगेंस्ट. दूसरा, इनको इस बात के लिए भी मेडल, ये जो टाइम्स मैगजीन में इन्होंने इसलिए भी इनका नाम लिखा है कि आपको पता होगा जो ब्रजभूषण शरण सिंह थे उनके अगेंस्ट में जब मोलेस्टेशन से रिलेटेड चार्जेस वगैरह थे तो साक्षी मलिक ने उनके अगेंस्ट में फाइट में भी पार्टिसिपेट किया था. तो इसके लिए भी इनका नाम इसमें रहा है कि उन्होंने खुल करके उसके अगेंस्ट में आई थी ये, और उस फाइट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. जो अदर जो लेडी प्लेयर थी, रेसलर्स थी, या अदर जो है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी थी, स्पेशली गर्ल्स, तो उनके समर्थन में इन्होंने बहुत सारा काम उस समय पर किया था. तो आज के सेशन में we have discussed multiple news and current affairs with special facts and their concepts and backgrounds. So now we are going to end today's session. I hope you enjoyed this session. So we will meet again in the next session. So तब तक के लिए goodbye, take care.